All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Rudra. Good evening, Harsh. Hi, Pratmesh. Good evening, sir. Good evening, Aditya. Good evening, sir. Good evening, sir. Good. Mute करने दो मुझे. वो साथ हो जाओगे सब. That's okay. All right. So, कैसा चल रहा है आप लोगों का preparation? All set? Good. तो फिर कहाँ पर है आज के डिनर के प्लान्स? कोई कहीं बाहर जा रहा है? कुछ स्पेशल बना रहा है? बढ़िया. गुड प्रथमेश. घूमने फिरने जाने का प्लान है तुम्हारा? वेरी गुड. All right. So जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, we are not going to begin the new chapter today. Like we'll keep today's session again primarily focused on any doubt, discussion, clarification that you might have, and consider this like an optional session only. Like you will not need to compulsorily sit in this class today. You have doubts, आप पूछो बिंदास. Otherwise, you can utilize your time in the revisions. All right, so I have some doubts incoming from Disha. Atomic window to main, question number 21. All right, let me see. कहाँ पर क्या है? बाकी लोग भी अपने डाउट्स कोलेट कर लो. Like if you have something to ask and discuss, let me know. नहीं एनी सब्जेक्ट का नहीं. अभी तुम लोगों का मैथ्स फिजिक्स का लेक्चर हुआ होगा ना इसके पहले? हाँ किसी भी चैप्टर का चलेगा ना. एटॉमिक, मोल, पीरियोडिक, गैसियस. कितना स्क्रॉल करना पड़ता है ये एटॉमिक का विंडो टू मेन में. क्वेश्चन नंबर 21. लेट मी फिगर आउट. Orbital angular momentum of an electron in 2s orbital. ये पूछ रहे हो आप? अच्छा नहीं, सॉरी, एडवांस्ड है, माय बैड. अच्छा ये वाला. Let me see that. All right. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जा रहा है, डबल हो रहा है बट चार्ज इज द सेम. सो लाइक इफ यू रिमेंबर द डेरिवेशंस दैट यू हैड डन, तो जो एनर्जी का डेरिवेशन था ऑफ एन ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. राइट. सो इफ यू रिमेंबर बोर्स मॉडल के डेरिवेशंस, उसमें आपको एक तो mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इक्वेट करना था, और एक mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के इक्वेट करना था. वहां से vnr in terms of variables you used to get, and उससे फिर kinetic energy used to be 2 pi square m k z e square, और in fact k z square e raised to the power of 4
k square upon n square h square, इस तरीके से था. So you can see that energy is directly proportional to mass. So if m doubles implies delta E, जो energy gap था वो भी double हो जाएगा, और इसका मतलब wavelength becomes half. ठीक है, because wavelength is inversely proportional to delta E. So the photon with the largest wavelength, ठीक है, यहाँ पे Bose model consider all possible to the first excited level. So lambda original would have been, or you can say 1 by lambda would have been, कैसा रहेगा? Imagine a proton this that applying consider all possible transitions to this hypothetical particle to the first excited level. तो largest wavelength मतलब shortest energy gap, मतलब ये n equal to 3 से n equal to 2 का transition रहेगा. So lambda will be 1 by lambda will be r z square, z तो 1 रहेगा, 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. So implies lambda was 36 by 5 r. अब lambda इसका half हो जाएगा, यानी कि lambda nu, lambda dash बोल दो, that will be 18 upon 5 r. That will be your correct answer. All right. Then क्या कह रहे हो यश? Can we use the formula for de Broglie wavelength as h upon root 3 m kbt? कौन से क्वेश्चन में, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो? Lambda is equal to और बताओ, और क्या डाउट्स हैं आप लोगों के? इफ नॉट तो फिर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, बोलो. आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्वेश्चंस करे हैं? गुड गुड, ठीक है. All right, let me give you some practice problems.
कहाँ गया? आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो. हाँ मतलब मैंने एक्चुअली म्यूट तो करा हुआ है बट समहाउ आई एम स्टिल गेटिंग someone is able to hack in. तब भी अनम्यूट कर पा रहे हैं. नहीं आई डिड अ फोर्स मोड बट पता नहीं हुआ एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ. ऑल राइट. Where did that go? Give me a moment. 15th. All right. चलो ठीक है कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो. What will be the answer to this question? नहीं सिंगल सिंगल चॉइस है. हाँ हाँ ये तो मैंने लास्ट क्लास में इसीलिए बताया था ना दैट जो वन और मोर देन वन चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. डोंट ट्राई टू ओवर अटेम्प्ट. ऑलराइट क्या रहेगा पहले वाले का आंसर?
like S1 अभी तक एक ही ने दिया है, रुद्र नहीं दिया है, बाकी लोग भी दो। मैं देखो अच्छे क्वेश्चंस ही कराऊंगा, तो ऐसा मत डिप्रेशन में आ जाना कि लाइक एमटी के पहले क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रिकी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ओनली। हाउएवर ओवरऑल टेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इट विल बी अ मिक्स ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जनरली 30-40% इजी क्वेश्चन होंगे, 30-40% मॉडरेट डिफिकल्टी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, 20% of the questions would be difficult, which would be differentiating ranks. So accordingly, you will have to design your test giving strategy. You don't need to push and try and answer each and every question. All right. चलो पहले वाले का देख लेते हैं क्या होगा। S1 spherically symmetrical orbital with two spherical nodes, तो ये 3s हो गया। ठीक है, देन S2 के बारे में बोला जा रहा है, ऑर्बिटल विद अ डबल डंबल एंड हैज नो रेडियल नोड। डबल डंबल माने D होगा एंड नो रेडियल नोड वुड बी 3D ओनली, राइट। देन S3 के बारे में, an orbital with orbital angular momentum 0, यानी कि L 0 हो जाएगा एंड 3 रेडियल नोड्स मतलब 4s हो जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, राइट। सो L 0 होना मतलब s ऑर्बिटल हो जाएगा एंड 3 रेडियल नोड्स मतलब 4s हो गया। देन एन ऑर्बिटल हैविंग वन प्लेनर एंड वन रेडियल नोड, वन प्लेनर वन रेडियल, तो दिस वुड बी 3p ऑर्बिटल। ठीक है, दे विल बी वन रेडियल नोड एंड वन प्लेनर नोड। तो अब इसमें इट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तो सिर्फ n पे डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो S1 S2 एंड S4 बराबर होंगे एंड S3 इनसे ज्यादा होगा। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। किसी ने भी फर्स्ट का सही नहीं दिया यार। अब क्या प्रथमेश तुम अब दे रहे हो जब मैंने आंसर बता दिया। अच्छा, तुम दोनों का एक साथ देना चाह रहे थे। ठीक है, सेकंड का भी देख लेते हैं। सेकंड का भी देखो भैया, किसने, एनीवन विद द करेक्ट आंसर सेकंड वाले का। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, ये तो नहीं होगा। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है क्या बोरॉन का, अगर 2s से 2p में एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यस इट कैन बी एन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन प्लस, ये भी 1s2 2s2 2p2 कार्बन होगा, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन में रिमूव करेंगे तो 2p से ही रिमूव होगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, राइट। सो इट विल बी बी। ठीक है, नहीं फर्स्ट वाले का डी क्यों होगा हर्ष, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोला है ना, मतलब एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, नॉट n प्लस l। राइट, समझ में आया। ऑल राइट, देन लेट्स सी।
All right, let me put forward one more question. क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा फोर्थ वाले का? एमिशन ऑफ लाइट कब होता है? डी एक्साइटेशन पर, राइट? सो 2s 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, 3p के बाद में 4s आता है, फिर 3d, है ना? तो 2s से 2p एक्साइटेशन हो गया, 2p से 3d भी एक्साइटेशन हो गया, 3d से 3p डी एक्साइटेशन हो गया, तो यहाँ पर होगा। देन 3p से 4s वापस एक्साइटेशन हो गया, 4s से 3p वापस से डी एक्साइटेशन हो गया, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज डी एक्साइटेशन की एक्साइटेशन देखो ना, 3p से 4s इज एक्साइटेशन ना, एक्साइटेशन में तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, फिफ्थ वाले का क्या रहेगा? राइट, 5 फोल्ड डीजेनरेसी होगी ना डी ऑर्बिटल की, the number of d orbitals for a given energy level in the absence of an external magnetic field will be 5. आई होप समझ में आया आपको ये। आस्था समझ में आया? यू गेव रॉन्ग आंसर। डीजेनरेसी का मतलब क्या था सुमित, वो याद करो ना। डीजेनरेसी वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो डी सबशेल का जो एनर्जी लेवल होगा उसके करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे ना, दैट्स व्हाई इट इज 5 फोल्ड डीजेनरेट। ऑलराइट, सिक्स्थ वाला बताओ, ये वाला।
ऑलराइट, तो कैसा रिलेशनशिप रहता है यहाँ पर? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m ke, right? Or you can say, in other words, kinetic energy is inversely related to 1 by lambda raised to the power of 2, right? So इसमें अगर मैं dke by ke will be equal to minus 2 d lambda by lambda, right? ये कैलकुलस के बहुत सारे स्टेप्स है जो मैंने एक बार में ही कर दिए, गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये कैसे आ रहा है ये मैं नहीं बताऊंगा, आई विल लीव इट अप टू यू टू फिगर इट आउट। दिस इज मैथ्स, दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन, बट अगर आपने पहले नहीं करा है तो कर लो प्रैक्टिस, राइट? तो यहाँ पर अगर 1% का डिक्रीज है, डिक्रीजेज 1%, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग बाय 2%। करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट। चलो, वन और मोर देन वन चॉइस है ये। इट कैन बी वन और मोर देन वन चॉइस, बताओ। देखो, ट्राई करो, बाकी लोग भी बताओ और क्या आ रहा है। रत्मेश ने तो दिया है। Nine of Lemon series. राइट, यहाँ पे कैसा रहेगा? 1 2 3 4, राइट? ये पॉसिबल 6 वेवलेंथ्स होंगी, राइट? सो यहाँ पर देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है? ये तीनों लाइमन सीरीज की हैं, ये बामर सीरीज है और ये पास्टन सीरीज है, ठीक है? सो
certain line of Lyman series of the atomic spectrum of hydrogen can satisfy the following condition. Can बोला है, ठीक है, must नहीं बोला है. तो ये भी एक important point रहेगा before you think of the answer. ठीक है, ये more than one choice वाले हैं, बहुत trap होते हैं. तो अब यहाँ पर can satisfy बोला जा रहा है. तो it is the sum of the frequencies of Lyman series and Balmer series, right? So for example, if I give this name L alpha, L beta, L gamma, and this is B alpha, B beta, and this is P alpha. So you can see that L beta is equal to B alpha plus L alpha. ये जो L beta है, ये B alpha और L alpha का combination हो सकता है. तो it is the sum of the frequencies of Lyman line and a Balmer line. तो ये हो सकता है. It is correct. Okay. Then D option में it is the sum of frequencies of certain Lyman and Balmer and bracket. Bracket तो कहीं आया ही नहीं. So यहाँ पर Lyman हो सकता है, Balmer हो सकता है, but bracket तो आए. Lyman Balmer पाश्चन रहता है, तो ये तो आप रिजेक्ट कर सकते हो. Then it is a sum of frequencies of Lyman, Balmer and Paschen. ये हो सकता है ऐसे. For example, L gamma, right? L gamma can be sum of P alpha plus B alpha plus L alpha. ठीक है. Then it is the sum of the frequencies of a Lyman and a Paschen line. So नहीं, एक मिनट, लास्ट वाला सोचने दो. Lyman series, ठीक है, Lyman series as a sum of a Lyman and a Paschen. हाँ ठीक है, बोल सकते हैं. L gamma can be equal to P alpha plus L beta. So ACD would be the correct answer. Right, Pratmesh. Bracket is de-excitations happening to n equal to 4. ठीक है, समझ में आया ये? All right. चलो ये वाला बताओ. क्या रहेगा इसका आंसर?
ऑलराइट, क्या आएगा इसमें? 3py ऑर्बिटल के बारे में बोला जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, ऐसा तो नहीं होगा। देन जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मैक्सिमास विल बी 2, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें एक नोड आएगा आपका। देन एक्स जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन, ये भी करेक्ट है। 3py ऑर्बिटल के लिए एक्स जेड प्लेन वुड बी द नोडल प्लेन। एंड रहा सवाल लास्ट का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मस्ट बी, ऐसा मस्ट का कोई नेसेसिटी नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मस्ट बी -1। Right, so BC would be the correct answer. ठीक है। राइट, हाँ सुमित, तो उसमें वो कन्वेंशन लेना पड़ता that z is the axis, like theta is measured from z. Alright, चलो ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो एज अ क्विक रिकैप।
ऑल राइट, क्या क्या आ रहे हैं 43rd का? बाय लुकिंग एट दिस ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने रेडियल नोड्स दिख रहे हैं आपको? 3 रेडियल नोड्स दिख रहे हैं। एंड लाइक यू कैन लुक एट दिस एज द पॉलिनोमियल पार्ट। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल पार्ट है। तो नॉन जीरो रूट्स implies n minus l minus 1, ये कितने हो गए? 3। एंड लोएस्ट पावर ऑफ r मतलब l, वो 1 के बराबर है। ठीक है, सिग्मा का टर्म रहेगा अलग से। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज दैट दिस विल बी अ 5p ऑर्बिटल। ठीक है, सो 3 रेडियल नोड्स एंड 1 एंगुलर नोड। ठीक है, तो 43 का a हो गया, 44 का b हो गया, 5p ऑर्बिटल है ये। Then if theta is measured from the z axis, then the orbital should be pz। ये भी मैंने आपको बताया था कि pz में cos theta का ही टर्म रहेगा, सिर्फ phi का नहीं आएगा। एंड what will be the maximum distance? तो रेडियल नोड्स कहाँ कहाँ पर है? सिग्मा इक्वल टू 1 पर है, सिग्मा इक्वल टू 2 पर है, एंड सिग्मा इक्वल टू 6 पर है। सो सिग्मा इक्वल टू 6 यानी कि 2zr by a naught is equal to 6 implies r is equal to 3a naught by z पर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थे कोई क्वेश्चंस। आई थिंक दिस काइंड ऑफ गिव्स यू अ fair bit of an insight into what the questions you can expect। आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे इन सब के आंसर्स? लास्ट वाले में देखो ना आप, ये इसके सिग्मा का, सिग्मा इक्वल टू 1 एक रूट रहेगा, और ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स रहेंगे ना, सिग्मा इक्वल टू 6 एंड सिग्मा इक्वल टू 2। तो वो मेरे नोट्स हो गए। एंड उनके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम मतलब सिग्मा इक्वल टू 6 पे रहेगा, राइट? समझ में आया? ऑल राइट, ठीक है। बाकी तो खैर आप लोगों ने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए ही हैं। और कुछ डाउट्स है तो बताओ। एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? मतलब ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चंस की तो कमी है ही नहीं। हाँ हाँ, मतलब एज आई सेड कंपल्शन नहीं है। लाइक इफ यू वांट टू सिट बैक एंड प्रिपेयर फॉर योर रिविजन्स देन इट्स ओके, डोंट नीड टू कंपल्सरीली सिट। एक तो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको। चलो ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस ट्राई कर लो। हम्म,
इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को रहने दो. दिस इज नॉट समथिंग, ये रिडक्शन वाला रिएक्शन आपको नहीं पता है, इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का नॉलेज लग जाएगा. आप यही दोनों ट्राई करो, 34 35. ऑलराइट, आया किसी का? शेखर का, प्रथमेश का आया है. लेट्स सी. 18 ml of, like you have say CX, HY and NZ. इसको O2 के साथ में combustion करके क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? We are getting CO2, we are getting H2O vapor and we are getting N2. X carbon का X ये Y by 2 to balance out the hydrogen and Z by 2 to get the nitrogen. अब ऑक्सीजन का बैलेंस्ड कोएफिशिएंट कितना होगा? X plus Y by 4. Okay, so this will be the balanced equation, right? अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये 18 ml है, इसके साथ कितना ऑक्सीजन लगेगा? So as to get just sufficient था, and on complete combustion it yields 8 ml of CO2, 12 ml of water vapor and 4 ml of N2. Okay. So एक से x बनना था तो 18 से 8 बन गया, तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो. देन एक से y by 2 बनना था तो 18 से 12 बन गया, एंड एक से z by 2 बनना था और 18 से 4 बन गया. तो यहाँ से आपको ये x, y, z की वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट? x will be equal to 8 by 18 or you can say 4 by 9, y will be equal to 4 by 3 and z will be equal to, कितना हो जाएगा ये, 4 by 18 and 4 by 18, 4 by 9 हो जाएगा ये, ठीक है? तो you can go for like C4 and H12. ये C ऑप्शन बैठ जाएगा ना, C2H6N2 ये बैठ जाएगा. एंड कितना ऑक्सीजन लगेगा यहाँ से आप निकाल सकते हो. यू विल गेट x plus y by 4. 1 से x plus y by 4 तो 18 से कितना लगेगा?
तो ये x plus y by 4 if you will do, so that is 4 by 9 plus 1 by 3 और एक मिनट 4 by 9 plus 1 by 3 3 by 9 7 by 9 into 18 14 ml आ जाएगा करेक्ट B and C मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ करेक्ट आंसर वुड बी B and C किस किसका आया राइट प्रथमेश गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन था देखो ऐसा नहीं था कि आसान था ये तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी आपके लिए इसलिए आपको लगा कि शायद आसान हो गया हो ठीक है otherwise to think of this normally would not have been an easy job ठीक है एक बार मैंने इक्वेशन लिख दूंगा तो फिर भी ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलो ऑल राइट और बताओ एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव इन माइंड एनी डाउट्स अब मुझसे क्या ज्यादा इजी क्वेश्चन दिए नहीं जाते हैं मैं अगर ऐसे इजी क्वेश्चन दूंगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे लग रहा है मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस देके बच्चों को टेंशन में डाल दूं किसी को टेंशन तो नहीं हो रही है अरे प्रथमेश तुम अकेले ठीक हो यार तुम आंसर भी दे रहे हो मुझे बाकी बच्चों का भी देखना है ना नहीं मुझे ज्यादा सिर्फ हर्ष और प्रथमेश का ही रिप्लाई आ रहा है बाकी ऋग्वेद कहाँ गया ऋग्वेद आर यू देयर हाँ रुद्र भी है यहाँ पर हाँ मतलब बताओ ऋग्वेद और रुद्र क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कहाँ गया ये रुद्र कहाँ गया अभी तो था थोड़ी देर पहले कुछ कुछ हो रहा है ऑल राइट अच्छा लक्ष्मी भी है ना यहाँ पे लक्ष्मी हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कि नहीं हो रहे हैं थोड़े बहुत हो रहे हैं थोड़े बहुत हो रहे हैं ठीक है तो अगेन देखो मेरा एडवाइस वापस यही है दैट दीज क्वेश्चंस आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ठीक है एंड if in the exam you plan to leave these questions then it's also good like focus on maximizing your scores don't get stuck with difficult questions जैसे मैंने आपको बताया that there will be a distribution 30-40% easy questions रहेंगे 30-40% difficult तो नहीं बोलूँगा सर moderate रहेंगे and हाँ 20-30% can be difficult so you don't need to and सबके marks तो same ही है ठीक है easy का भी same marks है difficult का भी same marks है so you will have to accordingly plan out ठीक है क्या कह रहे हो प्रथमेश पेरेंट्स क्या पूछेंगे तुमसे
हाँ, if you leave the questions, then it's a good thing, no? If you leave something difficult, then it's absolutely okay. अभी 90% थोड़ा benchmark रहा है. अरे, just give me a moment, guys. हाँ. नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स के साथ में भी एक पीटीएम होगा ना. आफ्टर आई थिंक द मेजर टेस्ट there would be one round of discussion with parents. Well, discussion तो नहीं होगा because it will be a Zoom meeting only. It becomes a discussion if it was in an offline manner. So देखते हैं. उसमें रहता है like पेरेंट्स का एक जनरल माइंडसेट रहता है कि 90% आना चाहिए बच्चों का, बट वो बोर्ड्स वाला माइंडसेट है. अब वो धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा. ऑल राइट. हाँ, मतलब सेक्शन 2 में द फोकस इज आपको यही देखना रहेगा दैट मोर देन वन चॉइस के क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करना. हर्ष, दैट विल बी द ओनली कैच. अक्षर का डाउट है विल देयर बी सम रिडक्शन इन पोर्शन. वेल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. कांट से. एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक मेंशन्ड अभी से. सो एज अ रिजल्ट we can't risk of we can't take the risk of missing out on portion. ठीक है. ऑल राइट. सो अगर और कोई डाउट्स नहीं है तो फिर आई विल क्लोज द लेक्चर. We'll then meet next class. We'll start with the next chapter, chemical bonding. In the meantime, आपके जो भी backlogs रहेंगे of this thing, gaseous, तो वो भी clear करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. चलो, all the best guys then. Take care. Good night.